Welcome back students to Sunil's Biology Jaipur. In today's class we will discuss about the process of translation. So question comes, what do you mean by the translation? Okay, in a very simple word we can say the synthesis of the protein, synthesis of the protein in a cell is called as translation. Okay, and remember we all know the site for the translation in prokaryotes and eukaryotes both. In prokaryote and in eukaryotes, in both the translation takes place inside cytoplasm. In cytoplasm it takes place. Okay, but remember in eukaryotes, apart from the cytoplasm, in semi-autonomous organelle organelle also, like mitochondria and chloroplast. In chloroplast also the protein synthesis or the translation takes place. Fine. Now when we talk about the mechanism of the translation, so the first of all we should understand about the various substances or the machinery which required during the protein synthesis or for the translation. So the first important machinery which is required for the protein synthesis is ribosome. We all know ribosome is what? It is a protein factory. Okay, basically the proteins are synthesized on the basis of the informations brought by the mRNA from the nucleus. Ribosome synthesize the protein. Okay, and that's why it is the protein factory. And when we talk about the chemical nature of the ribosome, ribosomes are ribonucleoproteins in nature. Ribonucleoproteins. Why they are called as ribonucleoproteins? Because ribosomal units are made up of the two important things, the protein plus rRNA. These two things are there, and that's why they are ribonucleoproteins in nature. And this is the site of the protein synthesis. Ribosome is the site of the protein synthesis in cytoplasm. In cytoplasm कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर भाई प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ होता है? In the ribosome. Remember, in ribosome this happens, this takes place over there. Okay, we all know that ribosome in prokaryotes and eukaryotes both different type, they have the different types. So for the ribosome अगर हम बात करें in prokaryotes, in prokaryotic cell 70S type of ribosome is found, and in eukaryotic cell 80S type of the ribosome is found. Okay,
So in the different cells, the type of the ribosome is different. Prokaryotic cells have the 70s and the eukaryotic cell have the 80s. हर राइबोसोमल यूनिट जो है खुद दो सब यूनिट से मिलकर बनी होती हैं, एंड दीज टू सब यूनिट्स आर कॉल्ड एज larger subunit and the smaller subunit. ओके, यहाँ पर भी larger subunit and smaller subunit, larger subunit and smaller subunit. Now in prokaryotes, the larger subunit is of the 50s and the smaller subunit is of the 30s, and here in the eukaryote the larger subunit is of the 60s and the smaller subunit is of the 40s. Okay, so the different ribosomal units are there, and these ribosomal units are responsible for the protein synthesis. When we talk about the larger subunit of the prokaryotic cell, it is made up of the proteins, okay, more than 50 type of the proteins, plus here 28s type of rRNA, 5s type of the rRNA and 5.8s type of the rRNA are present. They are contributing. So 3 type of the rRNAs are contributing in the formation of the larger subunit of the prokaryotic cell. Okay. Now when we talk about now the question comes, राइबोसोम जो है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में ये कैसे है ना? तो प्रोकैरियोट का राइबोसोम मैंने क्या कहा 70s टाइप का होता है, और यूकैरियोट का राइबोसोम कैसा होता है 80s टाइप का. अब यहाँ पर कुछ अगर नीट में कभी कोई क्वेश्चन पूछ ले तो हम उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर रहे हैं. प्रोकैरियोट्स में जो लार्जर सब यूनिट्स है ना, जो लार्जर सब यूनिट है जिसको हम 50s टाइप की सब यूनिट बोलते हैं, इसमें प्रोटीन्स और rRNA है. अब प्रोटीन्स का नंबर तो याद करने की ऐसे वैसे कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी 32 प्रोटीन्स, लेकिन ये पूछा जा सकता है अपन से, है ना. यहाँ पर 50s टाइप की जो यूनिट है उसमें जो rRNA है यहाँ पर प्रोकैरियोट्स में वो होते हैं 23s टाइप का और 5s टाइप का. कौन सा वाला? 23s टाइप ऑफ rRNA एंड 58s टाइप ऑफ rRNA. याद रखना. स्मॉलर सब यूनिट अगर हम कहें 30s टाइप की जो स्मॉलर सब यूनिट है, तो ये स्मॉलर सब यूनिट में प्रोटीन्स का नंबर 21 होता है और इसके अंदर सिर्फ एक ही तरह का rRNA मिलता है, और वो एक ही तरह का जो rRNA मिल रहा है दैट इज 16s टाइप ऑफ rRNA. तो याद रखना, राइबोसोम के अंदर ऑफ प्रोकैरियोट 3 तरह के rRNA मिल रहे हैं. एक है 23s टाइप ऑफ rRNA, एक है 16s टाइप ऑफ rRNA, एक है 5s टाइप ऑफ rRNA. 3 तरह के rRNAs जो हैं राइबोसोम के अंदर मिल रहे हैं. उसमें से 2 23 एंड 5 ये दोनों लार्जर सब यूनिट में है और 16 वाला जो है स्मॉलर सब यूनिट में है. ठीक है ना. अब अपन बात करते हैं यूकैरियोट में क्या है भाई. तो यूकैरियोट की जो लार्जर सब यूनिट है जिसको हम कह रहे हैं 60s टाइप की सब यूनिट, उसमें प्रोटीन्स का नंबर 50 है और उसमें भी यहाँ पर 3 तरह के rRNA होते हैं. 3 तरह के rRNA कौन से भैया? 20s टाइप ऑफ RNA, कौन सा? 28s, 5s एंड 5.8s. 3 तरह के RNA तो यहाँ है. और स्मॉलर सब यूनिट जिसका नाम हमने क्या कहा 40s टाइप की सब यूनिट है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटीन्स 33 और rRNA है सिर्फ एक टाइप का 18s. इस तरह से यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो rRNA मिलता है राइबोसोम्स के अंदर वो होते हैं 28s टाइप का, 18s टाइप का, 5.8s टाइप का एंड 5s टाइप का. ये 4 तरह के rRNA मिलते हैं यूकैरियोट्स में, जबकि प्रोकैरियोट्स में 3 तरह के मिलते हैं. याद रखना. इस तरह से ये राइबोसोमल यूनिट्स जो हैं, ये राइबोसोमल यूनिट्स क्या करती हैं,
प्रोटीन सिंथेसिस के लिए काम में आती है। अच्छा, अब एक बात ध्यान रखना, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ये राइबोसोमल यूनिट दोनों की दोनों स्मॉलर यूनिट्स और लार्जर यूनिट जो हैं ये सिर्फ कब बाइंड होती हैं, जब प्रोटीन सिंथेसिस करना होता है उस समय। मान लो ये एक सेल है, ओके, तो अभी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, तो ये उस समय ये स्मॉलर यूनिट और ये लार्जर यूनिट दोनों की दोनों जो यूनिट्स हैं ये अलग अलग होती हैं, डिसोशिएटेड होती हैं उस समय। कैसी हैं? डिसोशिएटेड। ओके, आगे बात समझे, जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है तो ये आपस में जुड़ी भी नहीं है। ये मैग्नीशियम आयन की एक स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन पे, जो कि करीबन 0.001 m होनी चाहिए, इस समय बोथ द सब यूनिट्स दोनों की दोनों सब यूनिट जुड़ जाती है। बोथ द सब यूनिट्स बाइंड्स विद ईच अदर ऑन mRNA के ऊपर बाइंड होती हैं और प्रोटीन सिंथेसिस करती है। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे भाई? इस प्रोसेस को कहेंगे एसोसिएशन ऑफ राइबोसोमल यूनिट। तो राइबोसोमल यूनिट का एसोसिएशन एक मैग्नीशियम की स्पेसिफिक कॉन्सेंट्रेशन में होता है सिर्फ प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान। प्रोटीन सिंथेसिस खत्म हुआ, वापस दोनों की दोनों राइबोसोमल यूनिट क्या हो जाएंगी? यहाँ पर डिसोशिएट हो जाएंगी। ठीक है, अब देखो राइबोसोमल यूनिट के बारे में अगर हम बात करें, स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट हो भैया चाहे लार्जर राइबोसोमल यूनिट हो, किसी भी राइबोसोमल यूनिट के अंदर, ये मैंने एक राइबोसोमल यूनिट बना दी भाई, मान लो ये स्मॉलर राइबोसोमल यूनिट है, ठीक है, और ये मैंने एक लार्जर राइबोसोमल यूनिट बना दी भाई, ये लार्जर राइबोसोमल यूनिट है। किसी भी राइबोसोम की यूनिट के अंदर 3 साइट्स होती हैं, उसके अंदर 3 साइट्स प्रेजेंट होती हैं, और ये 3 साइट EPA, यहाँ पर भी ये देखो मैंने बनाया 3 साइट्स हैं EPA, ठीक है। E स्टैंड फॉर एग्जिट साइट, याद रखना, E स्टैंड फॉर एग्जिट साइट, ठीक है। P स्टैंड फॉर पेप्टाइडल साइट, इसको P साइट है ना, एग्जिट साइट या E साइट, क्या बोला हमने? E साइट, एग्जिट साइट, P साइट है ना, एंड तीसरी जो है A साइट। मतलब 3 साइट्स होती हैं भैया राइबोसोम के अंदर, E साइट, P साइट, A साइट, ठीक है। P साइट जो क्या है? पेप्टाइडल ट्रांसफरेज साइट, पेप्टाइडल ट्रांसफर साइट, ओके। ए साइट जो है इज अमीनो एसाइल एक्सेप्टर साइट, अमीनो एसाइल एक्सेप्टर साइट। देखो होता क्या है समझना, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान आरएनए जो है वो इन दोनों राइबोसोम की यूनिट के बीच में फ्लैंक्ड होता है ऐसे, ओके। राइबोसोमल यूनिट के बीच में यहाँ फ्लैंक्ड होता है, ये 5 प्राइम एंड हो गया और ये 3 प्राइम एंड हो गया इसका राइबोसोम आरएनए का। और सबसे पहला जो जेनेटिक कोड है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, जो AUG होता है मीथियोनिन के लिए, उसके लिए जो tRNA सबसे पहली बार जिस अमीनो एसिड को, जो कि है मीथियोनिन, उस मीथियोनिन को लेकर आके जब यहाँ जुड़ेगा इस mRNA पर, वो कौन सी साइट पे आके जुड़ेगा? P साइट ऑफ राइबोसोम पर आके जुड़ेगा। ध्यान रखना, P साइट ऑफ राइबोसोम पे आएगा हमेशा, सबसे पहला अमीनो एसिड को लेकर आने वाला tRNA P साइट पे आके जुड़ेगा, क्योंकि सबसे शुरुआत में ये साइट खाली है। लेकिन अब उसके आगे जब भी कभी कोई tRNA अमीनो एसिड को लेकर आता है, तो वो जो अमीनो एसिड को लेकर जो भी tRNA आएगा वो A साइट पर लेके आएगा और यहाँ पर उस अमीनो एसिड के साथ में अटैच होगा mRNA पर वो tRNA। क्यों? क्योंकि P साइट खाली नहीं होगी वहाँ पर। तो अगली बार दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, हजारवा, मान लो कितने भी अमीनो एसिड्स की प्रोटीन चेन बन रही है, तो हमेशा दूसरे से लेके आखिरी तक के सारे अमीनो एसिड को लेकर आने वाला tRNA
इस ए साइट पे आके ही बाइंड होता है और फिर इस पेप्टाइडल साइट और ए साइट पे प्रेजेंट अमीनो एसिड के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, ठीक है। और उसके बाद ये राइबोसोम जो है इस एमआरएनए के ऊपर मूव करेगा। जब एमआरएनए के ऊपर मूव करेगा तो अभी जो टीआरएनए पी साइट पर है वो आ जाएगा ई साइट पे और ए वाला आ जाएगा पी साइट पे और इससे बाहर जो भी जेनेटिक कोड होगा वो आ जाएगा ए साइट पे। तो इस तरह से इस ई साइट पे आने के बाद ये टीआरएनए यहाँ से हटा दिया जाता है, रिलीज कर दिया जाता है और इसलिए इसको क्या कहते हैं, एग्जिट साइट। तो इस तरह से किसी भी राइबोसोम के अंदर 3 साइट होंगी। एग्जिट साइट वो साइट है जहां से टीआरएनए रिमूव होगा, पी साइट वो साइट है जहां सबसे पहला आरएनए, फर्स्ट टीआरएनए will join with methionine, ओके। एंड ए साइट जो है ये वो साइट है जहां बाकी के फर्दर अमीनो एसिड्स को लेकर आने वाले टीआरएनए बाइंड्स होते हैं। इस तरह से यहाँ पर ये राइबोसोमल यूनिट हो गई।